Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine. I am here with the new session. Today we will learn articles. Articles are very important topic in English grammar. They play very important roles. So we should know articles. Articles are just like the determiners. They are used as a determiners. So today we will know what is article and some of the example of the articles, फिर how we use the articles and how we categorize them, कैसे हम इनको categorize करते हैं, किस किस category में रखते हैं, फिर उसको हम सीखेंगे with the help of example. Okay, let's start without wasting any time. तो articles, first we will see the definition. An article is a kind of determiner which is always used with a noun and gives some information about a noun. Once again see, an article is a kind of determiner which is always used with a noun and gives some information about a noun. They specify the definiteness of the noun. And there are three articles used in English language. कौन कौन से हैं three articles? A and the. These are the three articles that are used in English language. A and the. कौन कौन से हैं? A and the. These are the three articles used in English language. The definition is an article is a kind of determiner which is always used with a noun and gives some information about a noun. They specify the definiteness of the noun and there are three articles used in English language. Which are these three articles? A and the. A and the. अब आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. आर्टिकल्स को हमने कितने डिवाइड किया, कितने कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स. और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? ए एंड. ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं. कौन से नाउन के साथ? काउंटेबल नाउन के साथ. एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल. सेकेंड वन कौन है? डेफिनिट आर्टिकल है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और कभी काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है. तो डेफिनिट आर्टिकल किसी चीज के डेफिनिटनेस को बताने के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द इज नोन एज डेफिनिट आर्टिकल. ए एंड आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स. ओके, लेट्स सी वंस अगेन इन ब्रीफ. An article is a kind of determiner which is always used with a noun. आर्टिकल क्या है? एक डिटरमिनर का प्रकार है, एक डिटरमिनर ही है जो हमेशा किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ होता है. और क्या वर्क करता है? इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. और कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? दे स्पेसिफाई द डेफिनिटनेस. ये किसी भी नाउन की, किसी भी थिंग्स की, किसी भी पर्सन की चीज की उसकी डेफिनिटनेस के बारे में बताते हैं ऑफ द नाउन. एंड देयर आर थ्री आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. हाउ मेनी आर्टिकल्स? थ्री आर्टिकल्स. कौन कौन से? ए एंड द. ए एंड द का यूज होता है. आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड. सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल द. Is it okay? I think it is clear. Now we will see in detail what is definite article, how we can use it, and what is indefinite article, what is definite article in the detail. Okay? Okay guys, so we will see in detail one by one. So first we will see indefinite article. और indefinite article के अंदर यूज होता है a and. कौन यूज होता है? A and. These are known as indefinite article. And indefinite articles are used with countable nouns. Indefinite article किसके साथ यूज होते हैं? countable nouns के साथ यूज होते हैं. कब कब यूज होते हैं? अभी हम इसको एक एक पॉइंट में देखें.
देखेंगे when we don't know exactly which one we are referring to, जब हमको ये नहीं पता होता when we don't know exactly which one we are referring to, हमको जब कोई चीज के बारे में, किसी नाउन के बारे में या किसी थिंग के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन सी हम रिफर कर रहे हैं. जैसे बाय द एग्जांपल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट एग्जांपल है द टीचर इज टॉकिंग अबाउट अ 10-year बॉय. आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए. अ 10-year-old बॉय. द टीचर इज टॉकिंग अबाउट अ 10-year-old बॉय. अब ये 10-year-old बॉय तो है बट आई डोंट नो. देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला है. आप ये जान लीजिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल तब होता है कि व्हेन द स्पीकर एंड लिसनर, दोनों में से किसी चीज को उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता कौन से नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है. कैसे? जैसे कि अभी ये टीचर हो सकता है टीचर को पता हो किस बच्चे की बात कर रहा है, किस बॉय के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो लिसनर है उसको पता नहीं है कि किस बच्चे के बारे में बात कर रहा है. द टीचर इज टॉकिंग अबाउट अ 10-year-old बॉय. अब वो कौन से 10-year-old बॉय की बात कर रहा है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन किसी बॉय के 10 साल के लड़के के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया. इज इट क्लियर? यहाँ पे ये चीज हमको एग्जैक्टली पता नहीं किस बॉय के बारे में. अगर यहाँ कोई नाम लिख देता द टीचर इज टॉकिंग अबाउट द ताजमहल, तो वो डेफिनेट हो जाता ताजमहल के बारे में बात कर रहा है. अबाउट द डॉक्टर, तो डेफिनेट हो जाता है डॉक्टर. लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया 10-year-old बॉय, तो अब ये 10-year-old बॉय तो कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, राधे, कोई भी हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल लगा अ 10-year-old बॉय. इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. मैं कल रात में एक मूवी देखा. अब ये हो सकता है कि देखने वाले को पता है, जो स्पीकर उसको पता है कौन सी मूवी देखा, लेकिन लिसनर को तो नहीं पता है. डेफिनेट आर्टिकल तभी होगा जब दोनों को पता हो, स्पीकर और लिसनर को. अब ये बता रहा है कि आई सॉ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात को एक मूवी देखी है. कौन सी मूवी देखी है लिसनर को थोड़ी पता है, सुनने वाले को थोड़ी पता है, जब तक वो बताएगा नहीं. तो मैंने हीर रांझा देखा, कि मैंने कभी खुशी कभी गम देखा, तो कौन सी मूवी देखा ये तो पता नहीं. अगर यहाँ लिख दिया था उस मूवी का टाइटल तब तो वो डेफिनेट हो जाता. लेकिन यहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल है कि मतलब मूवी देखा, ये नंबर तो बता रहा है कि एक मूवी देखा, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है कौन सी मूवी है. तो आई सॉ मूवी लास्ट नाइट, इसलिए ये इंडेफिनिट आर्टिकल है. एक मूवी देखा, कौन सी मूवी देखा वो डेफिनेट नहीं है, वो पता है नहीं है. इज इट क्लियर? आई ईट एन एप्पल पाई टूडे. आई ईट एन एप्पल पाई टूडे. अब एन क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है. अब कह रहा है कि आई ईट एन एप्पल पाई टुडे, मैं एक एप्पल पाई खाया टुडे. अब कौन सी एप्पल पाई खाया? ब्रिटानिया का खाया कि गुड डे का खाया कि किसका खाया, ये पता नहीं. एप्पल पाई खाया, उसका हमको ब्रांड नहीं पता, नहीं किस टाइप का ये नहीं पता है, को उसका स्वाद क्या है ये भी नहीं पता है. ठीक है, उसने एप्पल पाई खाया. इज इट क्लियर? सो दैट इट इज इंडेफिनिट आर्टिकल. It costs 100 rupees. It costs 100 rupees. कह रहा कि ये इसका कॉस्ट क्या है? 100 rupees. 100 रुपए. कितना? 100 रुपए. अब यहाँ 100 रुपए भी जो है ये काउंटेबल नाउन तो है. ठीक है, तो इसका कॉस्ट कितना? 100 रुपीज है, लेकिन ये इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में हुआ है. एग्जैक्ट नंबर ये 100 रुपीज तो बता रहा है, लेकिन ये इंडेफिनिट है. ओके. आई ईट एन ऑरेंज एवरी डे. कह रहा है नेक्स्ट एग्जांपल है आई ईट एन ऑरेंज एवरी डे. मैं प्रतिदिन एक ऑरेंज खाता हूं. ऑरेंज खाता है, अब राइट ऑरेंज खाता है या रॉ ऑरेंज खाता है, कच्चा ऑरेंज खाता है, पक्का ऑरेंज खाता है, ऑरेंज जूस के रूप में लेता है या ऑरेंज ऐसे ही खाता है, ये हमको पता नहीं. बट आई ईट एन ऑरेंज एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक ऑरेंज खाता हूं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल है और काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है. इज इट ओके फ्रेंड्स? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल नो द नेक्स्ट पॉइंट कि किसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं. ओके, तो वी हैव सीन that while referring
when we don't know exact number of the exact noun, what we are talking about. Now we will see while referring to an particular member of group. अब हम ये indefinite articles कब यूज होते हैं? While referring to particular member of group. For example, we can see John is a Catholic. John is a कैथोलिक. जॉन इज अ कैथोलिक. जॉन क्या है? एक कैथोलिक है. कैथोलिक क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जो क्या होता है? क्रिश्चियनिटी को मानते हैं. तो जॉन इज अ कैथोलिक. जॉन क्या है? एक कैथोलिक है. तो उस ग्रुप का मेंबर है, कैथोलिक ग्रुप का. तो ए क्या हो गया? इंडेफिनिट आर्टिकल. अब जैसे मैं यहां बोलूं बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री. सिटीजन ऑफ द कंट्री इट इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल. और उसमें से आपको क्या बनना है? रिस्पॉन्सिबल. तो उसमें से कौन पर्सन है ये हमको पता नहीं है. बी एस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल. जैसे राघव इज एन अमेजिंग डांसर. अब यहां हम कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं? अमेजिंग डांसर ग्रुप की बात कर रहा हूं. उसमें से राघव क्या है? एन अमेजिंग डांसर. ठीक है. ये किसी ग्रुप के मेंबर की जब बात करते हैं तो वहां इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं. राघव इज एन अमेजिंग डांसर मीन्स डांसर ग्रुप का एक अमेजिंग मेंबर है. नेक्स्ट पॉइंट है टू से व्हाट समवन इज और व्हाट जॉब दे डू. जब हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी के उसकी जॉब की बात करते हैं, उसके प्रोफेशन वर्क की बात करते हैं, तब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे ही इज अ टीचर. अब ये टीचर क्या है? उसका प्रोफेशन है, जॉब है, टीचिंग का काम करता है. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे. जैसे रमेश इज अ शेफ. रमेश क्या है? शेफ है. वो शेफ है, डिशेस बनाता है, उसके डिश के बारे में बताता है, उसको डिश का नॉलेज है खाना बनाने का. ठीक है. माई सन इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट. मेरा सन जो है वो क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट. उसका प्रोफेशन क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट. इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल एंड का यूज किया. Is it clear? I think it is clear. Now we will see the next point. Okay? Okay? So now we will see, we will use indefinite article with a singular noun to refer to all the things of that kind. किसके साथ? एक सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं. कब? जब वो नाउन उस प्रकार की सभी चीजों के बारे में, सभी नाउन के बारे में रिफर करता है. तब with a singular noun to refer to all the thing of that kind. कैसे? For example, let's see. A dog is man's best friend. अब यहाँ a dog बात कर रहा है तो किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं कर रहा. ये whole category of the dog की बात कर रहा है, whole class of the dog. A dog is man's best friend. जो एक कुत्ता होता है ना, वो आदमी का बेस्ट फ्रेंड होता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है. तो वो कोई भी कुत्ता हो सकता है. ठीक है. तो आपके पास जो भी पेट एनिमल हो उसकी बात हो सकती है. ठीक है. जो कोई भी अपना कुत्ता रखता है उसकी भी बात हो सकती है. यहाँ कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही. तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में यूज हुआ. जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. ये आपने सुना होगा फ्रेंड्स, बहुत जगह आपको यूज किया हुआ मिल जाएगा कि इफ यू टेक्स एप्पल अ डे इट कीप्स अ डॉक्टर अवे. अगर आप डेली एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. एन एप्पल, अब ये इंडेफिनिट है, कौन सा एप्पल है आई डोंट नो, लेकिन एप्पल खाने से आप हेल्दी रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं. इट वॉज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट. अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन इंडेफिनिट रिक्वायरमेंट को किस चीज की अर्जेंसी है, क्या अर्जेंट रिक्वायरमेंट है? तो इट वॉज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट. इज इट ओके? इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में भी बांटा गया. अभी तो हमने आर्टिकल्स की दो कैटेगरी देखी, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल है. अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इंडेफिनिट आर्टिकल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है. जैसे फर्स्ट वन इज आर्टिकल ए इज यूज्ड विथ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज किसके साथ किया जाता है? ऐसे वर्ड्स के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं. आप वोवेल्स कॉन्सोनेंट यू नो वेरी वेल. ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवेल्स है. उसके अलावा जितने भी हैं
21 वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल ए जो है इट इज यूज विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज हम जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके पहले यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ डॉक्टर, अ बॉय, अ कार, अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बी वेरी केयरफुल। ऐसे बहुत आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं या आपके एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें ये वर्ड्स जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है, आपको देखने में लग रहा है, मैंने अभी बताया आपको ए ई आई ओ यू ये सब क्या है, वॉवेल्स है, लेकिन यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्यों यूज हो रहा है? तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स तभी होंगे जब इनका साउंड आ, ए, ई, ओ, और आ आएगा तब। अब यहां पे यू इसका आ रहा है क्या? जैसे हम लिखे यूनिवर्सिटी, क्या लिखे? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी तो ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऐसे। तो यू से स्टार्ट हो रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है, या तो वॉवेल्स में आता नहीं, स्वर में आता नहीं, तो व्यंजन है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये वॉवेल्स में काउंट नहीं होगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड में काउंट होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड में होगा तो ये यूज होगा। जैसे अभी हम अम्ब्रेला लिखेंगे, UMBRELLA, तो अब अम्ब्रेला के यू का साउंड क्या आ रहा है? अम्ब्रेला के यू के साउंड का साउंड आ रहा है आ, इसलिए हम अम्ब्रेला से पहले क्या लगाएंगे? एन। क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ वी विल सी एन का यूज कैसे करते हैं वॉवेल्स के साथ, उसको बताएंगे। ओके, तो नाउ वी विल सी article and is used words starting with vowel sounds. Before this we have seen कि a जो article है उसको हम consonant sound से जो start होने वाले words है उनसे पहले यूज करते हैं, लेकिन अभी and का यूज कब करेंगे? article and is used words starting with vowel sound। हम and article का यूज करते हैं जो words वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। वॉवेल साउंड किसका होता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। जैसे कि एन इंजीनियर, तो इंजीनियर में ई से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड इंजीनियर, इससे पहले क्या लगेगा? एन। एन ऑरेंज, अब ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, तो वॉवेल है। एन ऑनेस्ट, अब यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे अभी हम इसके पहले देखे थे यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला का, वैसे ही यहाँ ऑनेस्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ऑनेस्ट और। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, ये जो ऑनेस्ट है ना, और ऐसे ही दूसरा वर्ड है और, इन दोनों वर्ड में एच जो है ना ये साइलेंट है। हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। इसको हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं। इसीलिए इसका जो साउंड निकलता है वो वॉवेल्स का निकलता है। इससे पहले हम एन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करेंगे, यहां भी एन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ये एच साइलेंट होता है दोनों जगह, जैसे ऑनेस्ट, आवर। ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसे ही अभी हम आपको बताएं कि जब हम उसमें ये यूनिवर्सिटी वाला, अभी आप यूनिवर्सिटी का और यूनियन का जैसे देख लो, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, जैसे यूनियन। अब ये दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही वर्ड यू से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वॉवेल में क्या कहता है? ए ई आई ओ यू, वॉवेल के अंदर आते हैं। तो यू तो वॉवेल्स में है, फिर यहां इनके पहले एन लगना चाहिए? नो,
इट इज नॉट द रूल। रूल इज दैट कि जो इनका साउंड आएगा, प्रोनाउंसिएशन साउंड आएगा, वो वॉवेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो। अब यहां यूनियन अगर हम लिखेंगे तो यूनियन तो ऐसे होगा, यूनियन। तो यूनियन में ये इसका साउंड आ थोड़ी आ रहा है या ऊ थोड़ी आ रहा है। जब इसका ऊ या आ आएगा तब हम एन यूज करेंगे। उसके अलावा अगर या का साउंड आ रहा है तो हम ए यूज करेंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगता है? ए लगता है। यूनियन से पहले क्या लगता है? ए लगता है। जैसे यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से पहले क्या लगता है? ए लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी या ही प्रोनाउंसिएशन आता है। ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह हम इससे कर दें अम्ब्रेला, क्या करते हैं? अम्ब्रेला। तो यहां अम्ब्रेला का आ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो इसलिए एन लगेगा। क्या लगेगा? एन अम्ब्रेला। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर. Indefinite article is clear to all of you. I hope this, and I hope you enjoyed the class. It was a very important session for you. We have learned lots of things about the indefinite articles. अभी हमने indefinite articles को complete कर लिया. आज यहीं पे सेशन को एंड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खींचने वाला है और ये बोरिंग हो जाएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, wish you all the best. Like and subscribe the channel so that you can get the more and more videos. Thank you.